Begin now. A table of f, g, f dash, and g dash is given. Hmm? And we are asked to find out few things here, like pehli cheez. What is the first thing they are asking here? They say if r of x is equal to r of x is equal to f of g of x, find r dash of 2. R dash of 2. Now what will be r dash of 2? इसका derivative. So what will be r dash of x? इसका derivative. Isn't it? R dash of x क्या होगा? इसका derivative. तो इसका डेरिवेटिव क्या एफ ऑफ ब्रैकेट है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए. इट विल बी नथिंग बट एफ डैश ऑफ ब्रैकेट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट. दिस ब्रैकेट इज जी ऑफ एक्स. दिस ब्रैकेट इज जी ऑफ एक्स. तो ये क्या होगा? आर डैश ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू इसका डेरिवेटिव कहलाएगा जी डैश ऑफ एक्स. तो आई वांट दिस एट एक्स इज इक्वल टू 2. तो कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट. दिस बिकम आर डैश ऑफ 2 is f dash of g of 2 into g dash of 2. अब देखिए सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. व्हाट इज, सबसे पहले मुझे g of 2 चाहिए. g of 2 is 6, so they want f dash of 6, and g dash of 2, g dash of x, g dash of 2 is 4. ठीक है. and f dash of 6, f dash of 6 is minus 4. So this is minus 4 into 4, that is equal to minus 16. That's the answer. Is this clear to you all? Is this clear to you all? Is this clear to you all? Second question. Second, r of x, capital R of x, is g of 3 plus f of x. Then find out r dash. r dash of 4 चाहिए. तो मैं पहले r of 4 find out करूँगा. Sorry, r dash of x find out करूँगा. So what will be r dash of x is equal to r dash of x. मतलब यहाँ पर ब्रैकेट क्या आएगा जी? What will be the bracket over here? The bracket here would be ये. This is the outer bracket. ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा? G dash of this bracket into d by dx of this bracket. Now this bracket is 3 plus f of x. This bracket is 3 plus f of x. समझे? Now that is equal to अभी इसका जब मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, g dash of this, g dash of this is 3 plus f of x इंटू इसका डेरिवेटिव जब लिया जाएगा तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा और इसका डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x. अब मुझे r डैश ऑफ 4 चाहिए. दिस इज r डैश ऑफ x. सो दिस सीधा सीधा यहाँ पर हम बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 4. एट x इज इक्वल टू 4 ये क्या बन जाएगा? एट x इज इक्वल टू 4 दिस विल बिकम r डैश ऑफ 4 is equal to g dash of 3 plus f of 4, x के जगह पर 4 into f dash of 4. अब देखिए f of 4 कितना है? f of 4 और f dash of 4 ये दोनों लिखना पड़ेगा ना अपने को. टू राइट हियर f of 4 is 3 and f dash of 4 is 5.
So this is 3 plus 3 का g dash into 5. Now this is g dash of 9. G dash of, sorry, 6. G dash of 6 is 7. So 7 into 5 is 35. That's the answer. Is this clear to you all? अरे समझ में आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हेलो? इसी तरह Yes, से sir. अगला वाला जो है, मैं चाहूंगा कि ये दोनों आप लोग होमवर्क करिएगा. ये डू दिस एज होमवर्क, सेम टाइप के हैं. ट्राई कर लो, आएगा तुमको. ठीक है? I'll go for the next question. Question number 5. Question number 5. I'll go for question number 5 now. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है यहाँ पे. Assume that f dash of 3 is -1, g dash of 2 is 5, g of 2 is given, y is equal to f of g of x, then dy by dx or at x is equal to 2. Well, क्या होगा dy by dx? यहाँ पे देखते हैं. dy by dx is, यहाँ पर ब्रैकेट क्या आएगा? दिस इज द ब्रैकेट. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? f dash of bracket, f dash of bracket into d by dx of bracket. Now this bracket is g of x. Now this is nothing but f dash of g of x into इसका डेरिवेटिव होगा g dash of x. This is dy by dx at x is equal to 2. This will be dy by dx at x is equal to 2. x की जगह पर 2 लिखना है. This is f dash of g of 2 into g dash of 2. That is g of 2 कितना है? 3. So this is f dash of 3 into g dash of 2 is 5, and f dash of 3 is -1. So -1 into 5 is -5. Is this clear? Same type of question it was. Same type of question था ये भी. Okay. I'll go for the next question. Question number 6. नेहा क्यों absent है आज? Any idea? Anybody knows? Question number 6. Question number 6. देखिए क्या दिया है यहाँ पे. H of x is given, f of 1, g of 1, f dash 1, g dash 1, find out h dash of 1. देखिए h of x is given to me. First of all, let me say this is h of x. This is h of x. ये h of x है. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? What will be h dash of x? यहाँ पर एक्चुअली व्हाट इज द ब्रैकेट हियर? ये है ना स्क्वायर रूट के अंदर, ये सब ब्रैकेट है एक्चुअली. ये पूरा ब्रैकेट है. सो दिस इज 1 अपॉन
1 upon 2 root bracket 1 upon 2 root bracket into d by dx of bracket, ऐसा बनेगा. Now what is this bracket? This bracket is 4 into f of x plus 3 into g of x plus 3 g of x. इसको इरेज करना पड़ेगा. 3 into g of x into d by dx of 4f of x plus 3g of x. ऐसा हो गया. ठीक है. अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है. सो दिस विल बी एज इट इज. ये एज इट इज आएगा. ये सब एज इट इज आएगा. इनटू इसका डेरिवेटिव आएगा 4 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ एक्स. नाउ दिस इज एच डैश ऑफ एक्स. आई वांट एच डैश ऑफ 1. सो पुट एक्स इज इक्वल टू 1 एवरीवेयर. तो ये बन जाएगा एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा 2 रूट 4 टाइम्स f of 1 plus 3 times g of 1 into 4 times f dash of 1 plus 3 times g dash of 1, that is equal to, तो f of 1 g of 1 f dash 1 g dash 1 लिखना है. f of 1 g of 1 4 3 f dash 1 g dash 1 3 4 4 3 3 4. so चलिए 1 upon 2 into square root of this is 4 and 3, so 4 4 16 3 3 9 16 9 25 5 square root of that is 5. This is 5 into this is 3 and 4, so 4 3 are 12 plus 12 24. So this is 12 upon 5 is the answer. 12 upon 5 डिफरेंशिएशन के आंसर्स अगर हम देखें 3 4 1 ये नहीं, सिक्स्थ वाला आंसर इज 12 अपॉन 5. सिक्स का आंसर इज 12 अपॉन 5. ये रहा सिक्स का आंसर 12 अपॉन 5. इज दिस ओके? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Find x coordinates of all the points on the curve. Y is equal to sine 2x minus 2, where 0 less than or equal to x less than 2 pi. ठीक है. डिवाइड बाई डी एक्स इज 0. चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. यहाँ पर डेरिवेटिव लेने के लिए साइन ऑफ 2x यहाँ पर ब्रैकेट होगा. सो व्हाट विल बी डिवाइड बाई डी एक्स. डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा
cos of bracket into d by dx of bracket minus derivative of 2 is 0. Now this is 2x. Now they say dy by dx is 0. This is cos 2x into derivative of 2x is simply 2. 2 cos 2x is 0. ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा, सो 0 इज इक्वल टू cos 2x. अब cos 2x को मुझे इसके फैक्टर्स में लिखूंगा. cos 2x के फैक्टर्स होंगे 2 cos square x minus 1 is equal to 0. फर्दर और फैक्टर्स फर्दर क्या होंगे इसके? This become root 2 cos square root 2 cos x plus 1 root 2 cos x minus 1 is equal to 0. साइन 2x minus 2 क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ हो गया है. sin x. प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे. एक्चुअली 2 sin x है ना, मैंने sin x लिया ही नहीं. अब लिखेंगे, ठीक है. तो दिस माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इज अ कांस्टेंट एंड sin x का डेरिवेटिव cos x. ठीक है, ये क्या बन जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 cos 2x माइनस 2 cos x and divided by dx is 0. Now this will become, ये cos 2x के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 cos 2x is what? 2 cos square theta. बराबर है क्या? 2 cos square x minus 1 minus 2 cos x is equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बनेगा ये बताइए? दिस विल बी 4 cos square 2x और 4 cos square x minus 2 cos x minus 2 is equal to 0. Divide throughout by 2. So 2 will become 2 cos square x minus cos x minus 1 is equal to 0. इसके फैक्टर्स हो जाएंगे minus 2 plus 1, मतलब 2 cos square x minus 2 cos x plus cos x minus 1 is equal to 0. 2 cos x is common. Cos x minus 1 minus plus 1 common. Cos x minus 1 is equal to 0. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा cos x is equal to 1 और cos x is equal to minus half. cos x is equal to minus half मतलब क्या बनेगा रे? cos x is equal to 1, so x is equal to 0. बराबर है क्या? cos x is equal to minus half. cos x minus half कहाँ पर होगा? cos x अगर cos sin cos वहाँ नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है? चल मैं all silver tea cups. तो cos is negative in the first and the second quadrant. मुझे इसको आगे लेके सॉल्व करना पड़ेगा. देखिए गौर से कैसे सॉल्व करेंगे इसको. cos, well write it as it's either in the I can say this cos x is negative in the second quadrant ना. so मैं इसको लिखूंगा cos x is equal to minus cos of 60 डिग्री. तो ये माइनस cos 60 कैसा कैसा आ सकता है? इट कैन बी cos of 180 minus 60.
और देखिए गौर से cos ऑफ 180 प्लस 60 बराबर है क्या? cos ऑफ 180 माइनस 60 इज माइनस cos 60 एंड cos ऑफ 180 प्लस 60 इज आल्सो माइनस cos 60. तो ये cos x के दो आंसर्स आएंगे. तो cos x इज इक्वल टू दिस इज cos ऑफ 120 डिग्री और cos ऑफ 240 डिग्री. अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 120 डिग्री और 240 डिग्री. मतलब कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन नाउ. सो दिस इज 120 into pi by 180. This is 240 into pi by 180. So this 0 gets cancelled. 0 gets cancelled. 6 2s are and 6 3s are. So x is equal to 2 pi by 3 or 3s are 4s are 4 pi by 3. So x is equal to 0, x is equal to 2 pi by 3 and x is equal to 4 pi by 3. ऐसे तीन आंसर्स बनेंगे. Mark it as a star problem. Therefore x is equal to 0, 2 pi by 3 और 4 पाई बाई 3. ये तीन ही आंसर्स होंगे. बुक में इन्होंने 2 पाई भी दिया है लेकिन 2 पाई इज नॉट इंक्लूडेड हियर इन दिस एज पर द क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया है 2 पाई इज नॉट इंक्लूडेड. चेक हियर. यहाँ पे 0 है, x है, 2 पाई इज नॉट द इंक्लूडेड. तो 2 पाई कैन नॉट बी द आंसर. लेकिन उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है कि भाई 2 पाई इज ऑल्सो द आंसर. बट दैट्स रॉन्ग. ये उनका गलत आंसर दिया है. हाँ ये गलत है आंसर. उनको लेटर भेजना पड़ेगा. द आंसर दैट बुक हैज गिवन इज दिस. बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 पाई ना होते हुए 4 पाई बाई 3 होना चाहिए. प्लीज सेंड देम द लेटर. तो उनको बोर्ड का ऐसा लेटर भेज दो. आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है. लास्ट ईयर भी था, अभी भी है शायद वो. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दिस? आई सेड एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस क्लियर? आर यू ऑल लाइव देयर? चलिए Yes, अगले sir. क्वेश्चन. यस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यार ये अगला फिल इन द ब्लैंक से आप लोग कर लेना यार. वो नहीं करूंगा मैं. आई विल नॉट डू दैट. ठीक है. तो ओके, लेट अस टेक आवर डिस्कशन फर्दर नाउ. आगे चलते हैं हम. सो फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हमारे 5th लेक्चर या 6th लेक्चर में पूरा हो गया. लेकिन आई होप कि आप लोगों को चेन रूल समझ में आ गया होगा. दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज यूज ऑफ चेन रूल. यूज ऑफ चेन रूल. ठीक है. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट कि समझो यहाँ पर चेन रूल फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. I want to apply the chain rule for inverse trigonometric functions. Chain rule for inverse trigonometric functions. Chain rule for inverse trigonometric functions. चलिए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की. तो पहला वाला हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है. साइन इनवर्स ऑफ x इज कॉल्ड एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. वी कॉल दिस एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है. तो लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. ऐसा अगर है तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे. लेट्स सी. इसको मैं बोलूंगा प्रूफ. I call this as y is equal to साइन. तो इसके लिए मैं एक सिंपल फंक्शन यूज करूंगा. देखिए क्या फंक्शन हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स. एक फॉर्मूला dy बाई डी एक्स is equal to 1 upon dx upon dy. I'll be using this formula. इसका डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे लेकिन ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. लेट मी चेक. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई. ये सिंपल फॉर्मूला. तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है. मैं आपको साइन इनवर्स फंक्शन बता दूं कि भाई
यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेन करना है साइन इनवर्स फंक्शन का है कि भाई अगर साइन ऑफ पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री इज हाफ, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर इस साइन को मैं इधर भेज दूँ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि हाउ डू वी इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका साइन रेशियो इज हाफ, तो इट इज पाई बाय 6। साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज पाई बाय 6। सिमिलरली व्हाट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2, ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका साइन रेशियो 1 बाय रूट 2 है, तो 45 डिग्री दैट इज पाई बाय 4 रेडियन। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 2, ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका साइन रेशियो रूट 3 बाय 2 है, तो पाई बाय 3 60 डिग्री। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द साइन इनवर्स फंक्शन। इसी तरह से कॉस इनवर्स टैन इनवर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से ये साइन इधर जाता है तो वो साइन इनवर्स बन जाता है, और साइन इनवर्स अगर इधर जाएगा तो वो बन जाएगा साइन वाई। देयरफॉर व्हाट एम आई गोइंग टू गेट हियर, दिस विल गिव मी टू बी x इज इक्वल टू साइन वाई, x इज इक्वल टू साइन वाई। अब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, लुक एट दिस केयरफुली। dy बाई डी एक्स हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन y इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स ईजी है, लेकिन यहाँ पर x इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पर मुझे dx बाई डी वाई फाइंड आउट करना इजी जाएगा, समझे क्या? सो दिस विल बिकम डिफरेंशिएटिंग with respect to y, so this will become dx upon dy is equal to cos y, or that is equal to square root of 1 minus sin square y. Cos y is equal to 1 minus sin square y, और अब मैं लिखूंगा sin y is x, तो ये क्या बन जाएगा, it will become that is equal to square root of 1 minus x square is dx by dy. Therefore what is dy by dx, it is 1 upon square root of 1 minus x square. So in short, what formula we write here? Therefore, d by dx of y, but y is sin inverse of x, is equal to 1 upon square root of 1 minus x square. तो ये बन जाएगा तुम्हारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? चेन रूल यूज करके हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर लिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? हेलो हेलो, समझ में आया सबको ये? नो सर। यस ओके, तो ये था पहला डेरिवेशन। यस, ठीक कर देना। यस सर। तो ये मैंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, तो ऐसे हर एक के डेरिवेशंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन द डेरिवेशंस फॉर ऑल ऑफ दिस। चलिए लेट्स हैव फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। दूसरा डेरिवेटिव मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए। इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, देन ये डेरिवेटिव, ये प्रूफ है, देन d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, ये है प्रूफ। अभी हम फाइंड आउट डिराइव करने जा रहे हैं प्रूफ। प्रूफ, we have y is equal to cos inverse of x, therefore what is x is equal to cos y. Now differentiating with respect to y, with respect to y का मतलब क्या होगा जी, with respect to y का मतलब है यहाँ पर होगा d बाई डी वाई और इधर भी होगा d बाई डी वाई। तो चलिए इसका डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, dx अपॉन डी वाई, कॉस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y। लेकिन आंसर मुझे x में
is equal to minus square root of 1 minus cos square y. That is equal to minus square root of 1 minus x square, because cos y is x, and therefore dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, and therefore dy by dx is equal to minus 1 upon square root of 1 minus x square. This is nothing but dy by dx of y. Y माने cos inverse of x, and that's the answer. That's the answer. Is this clear to you all? Is this okay? That's the derivation. इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं tan inverse of x के लिए भी. We can write it for tan inverse of x. We can write it for cot inverse of x. We can write it for cosec inverse of x. So I'll write it for cot inverse of x. फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला ये आपके फॉर्मूले पेज में चला जाएगा. So if y is equal to cot inverse of x, then d by dx of cot inverse of x is equal to क्या. तो इसका प्रूफ देखते हैं. चलिए अब बताइए, सेम तरीके से करना है इसको, बिल्कुल सेम तरीके से करना है. therefore what is x is equal to cot y, differentiating with respect to y, so will be called upon as dx by dy is equal to what is cot y का डेरिवेटिव with respect to y. cot x का डेरिवेटिव with respect to x is minus cosec square x. cot y का डेरिवेटिव with respect to y is minus cosec square y. That is equal to minus 1 plus cot square y. But cot y is x, so this is minus 1 plus x square. This is dx upon dy. लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए dy by dx. We want dy by dx, which is equal to 1 upon dx upon dy. That is equal to minus 1 upon 1 plus x square is equal to dy by dx, मतलब dy by dx of cot inverse of x, and that becomes the formula. That becomes the formula. Any doubts about that? इसी तरीके से आप लोग similarly you will find out what is dy by dx of tan inverse of x. Tan inverse of x is given by 1 upon 1 plus x square. सेम तरीके से करना है, लेकिन वो आपका होमवर्क होगा. दिस इज योर होमवर्क. बिल्कुल सेम तरीके से करना है. तो दिस डेरिवेशन विल बी होमवर्क फॉर यू. ओके, चलिए अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं. द नेक्स्ट डेरिवेशन दैट आई गो फॉर इज if y is equal to cosec inverse of x, then d by dx of cosec inverse of x is equal to. चलिए प्रूफ देखते हैं इसका. therefore what is x is equal to cosec y. x is equal to cosec y. Differentiating with respect to y, this is called as dx upon dy is equal to what is derivative of cosec x with respect to x minus cosec x cot x. So derivative of cosec y with respect to y is minus cosec y into cot y. बराबर है क्या? Now that is equal to minus cosec y, and cot y को लिखूंगा square root of cot square y. Cot y is written as square root of cot square y. That is equal to minus cosec y, and cot square y is actually cosec square y
-1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा देखिए, cosec y is actually x, so this is -x into square root of x square minus 1. This is dx upon dy, and I am looking for dy by dx, which happens to be the reciprocal of dx upon dy. So let me substitute here, -1 upon x into square root of x square minus 1 इसका डेरिवेटिव, and this is nothing but dy by dx. dy by dx का मतलब है d by dx of y. y माने y is nothing but cosec inverse of x. Cosec inverse of x, and becomes the formula. That becomes the formula. Okay, so ये रहा इसका फॉर्मूला। अरे अरे अरे, हाँ चलिए, similarly d by dx of sec inverse of y सेम ऐसे ही होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है फॉर्मूला। इज दिस ओके? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपको डिराइव करना है, दिस यू हैव टू डिराइव, ये आपका होमवर्क रहेगा, यू विल डू दिस एज अ होमवर्क। इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? whatever these derivations are, इन हर एक डेरिवेशंस के लिए कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज वैलिड। ये जो डेरिवेशंस मैंने डिराइव किए हैं उसके कुछ रेंज होंगे, तो रेंज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग रेफर कर सकते हो दिस, इसके लिए जो रेंज दिया है, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर ये रेंज दिए हुए हैं, प्लीज कम बैक। देखिए यहाँ पर वो रेंजेस दिए हुए, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज। ये देखिए, दिस इज द रेंज फॉर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। इफ आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, यहाँ पर उन्होंने कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज दिया है जो मैंने डिराइव किया कि ये जो मैंने फाइंड आउट किया है, वॉट एवर आई हैव फाउंड आउट हियर, this is the answer when x is greater than 1, लेकिन यहाँ का माइनस साइन चला जाएगा। दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x is लेस देन -1। ये रेंज है। ठीक है, आप बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा या फिर दोनों भी याद रखिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, तो दिस इज रेंज फॉर कोसेक इनवर्स फंक्शन, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये जो मैंने बॉक्स में दिए हैं ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, वो हमें ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादातर यूज़ करने पड़ेंगे, बट इन जेई के प्रॉब्लम्स वी हैव टू रिमेंबर दिस रेंज। इज दिस ओके? सेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए भी उन्होंने वैसा ही कुछ रेंज दिया हुआ है, व्हिच इज ओवर हियर। दिस इज द रेंज गिवन फॉर सेक इनवर्स ऑफ फंक्शन। ये रहा, दिस इज द रेंज फॉर सेक इनवर्स फंक्शन। ये मैंने जो सेक इनवर्स का सिमिलरली दिया है ना आपको, यहाँ पर उन्होंने सेक इनवर्स का रेंज दिया है। दिस इज इट फॉर x इज ग्रेटर देन 1, और ये माइनस साइन होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ x इज लेस देन -1। दिस इज x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1। तो ये रेंज है सेक इनवर्स फंक्शन का, लेकिन आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? सिमिलरली देयर आर रेंजेस फॉर साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के लिए भी वैसे रेंजेस है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसके बाद तो ये है
कॉट इनवर्स हो गया, tan इनवर्स हो गया, तो उसके लिए भी कुछ रेंजेस दिए, तो सारे रेंजेस जो दिए हैं दोज आर गिवन ऑन पेज नंबर 19. प्लीज चेक, द रेंजेस आर गिवन हियर ऑन पेज नंबर 19 itself. ठीक है, ऑल द रेंजेस आर गिवन हियर. ये रहा, दिस इज द रेंज फॉर साइन इनवर्स फंक्शन. ये रेंज दिया है, dy by dx का रेंज इज mod of x is less than 1. cos इनवर्स फंक्शन का रेंज इज mod of x is less than 1. tan इनवर्स फंक्शन को कोई रेंज नहीं है, cot इनवर्स फंक्शन को कोई रेंज नहीं है. sec इनवर्स फंक्शन for x is greater than 1, for x is less than 1, for x is greater than 1, for x is less than 1, minus 1. ठीक है, तो ये वाला जो टेबल है वो आप याद रखिएगा, प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. और मैं चाहूंगा कि आप लोग ये टेबल याद रखिएगा. आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर दिस टेबल प्लीज. ठीक है, आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर दिस टेबल. तो ये टेबल आपको याद रखना है, इसमें सारे रेंजेस भी दिए हुए हैं. वेल अपार्ट फ्रॉम दैट, ये टेबल आपको याद रखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट और एक टेबल दिया है, देखिए यहाँ पे, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. वो टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हम डायरेक्ट ही अप्लाई करने वाले हैं. द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज, डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस. नहीं, तो ये वाला टेबल हम डायरेक्ट डिराइव मतलब अप्लाई करेंगे. अगला टेबल दैट आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर इज सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. प्लीज हैव अ लुक एट दिस, प्लीज हैव अ लुक एट दिस. ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विच टॉक्स अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. उसके पूरे ग्रुप ही उन्होंने वहाँ पे दिया है. ऑल आर एक्सप्लेन्ड हियर इन डिटेल्स. देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है. चलिए, तो पहला वाला ग्रुप देखिए. आई ग्रुप दिस, ऑल ऑफ दिस आई बी ग्रुपिंग देम नाउ. ठीक है, तो पहला ग्रुप जो है ये रहा, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप. व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर इन द फर्स्ट ग्रुप? दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ टेबल. साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा. ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा. यहाँ पर आपको अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो देखिए गौर से, आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ. आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू कि व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 6, मतलब 30 डिग्री का साइन कितना होता है? तो हाफ होता है, करेक्ट. एंड सो व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ? मैं हाफ की जगह पर मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ हाफ. हाफ की जगह पर साइन ऑफ पाई बाय 6. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 6 इज हाफ एंड साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज पाई बाय 6. मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज एक्स. क्या यहाँ पर वही नहीं बोला है उन्होंने? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा. इज इट नॉट द सेम थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट हियर? प्लीज टेल मी, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? हेलो हेलो. उसी को, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर cos also. Cos inverse of cos theta is theta. Tan inverse of tan theta is theta. Sec inverse of sec theta is theta. Cosec inverse of cosec theta is cosec theta. ये थीटा बाहर आएगा. अच्छा, इसको उल्टा भी करते हैं अगर हम, तो भी वही चीज आएगी. even if राइट उल्टा, मतलब लेट्स से cos ऑफ पाई बाय 6. मुझे बताइए व्हाट इज cos ऑफ पाई बाय 6? cos ऑफ 30 डिग्री इज √3/2 एंड cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज पाई बाय 6. मतलब cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ x इज x. ये देखिए, cos ऑफ cos इनवर्स, अच्छा उल्टा हो गया ना क्या? वेट वेट वेट, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है. cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल. cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ हाफ. तो ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका कोसाइन रेशियो हाफ है? ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका cos इनवर्स इज हाफ, मतलब cos इज हाफ, so that is pi by 3 and cos of pi by 3 is half. तो cos of cos inverse of half is half. ये देखिए यहाँ,
नाउ दिस इज एप्लीकेबल फॉर साइन आल्सो, कॉस आल्सो, टैन आल्सो। ये दो सेट्स है यहाँ पर, एक के अंदर दो सेट्स है यहाँ पर, दिख रहा है आपको ये? कैन यू ऑल सी दिस? तो पहले इनवर्स बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अंदर है, यहाँ पर इनवर्स अंदर है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाहर है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस ग्रुप? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस ग्रुप? तो साइन ऑफ सर साइन एक इनवर्स ग्रुप ऑफ करो एक्स ना। इज एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? सर हेलो एक हेलो टेस्ट हेलो। करो ना। क्या करूँ? टेस्ट कॉपी करके। फॉर्मूला? यस सर, ये वाला। फॉर्मूला टेस्ट? क्या क्या बोल रहे हो तुम? ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के और भी कुछ फॉर्मूले हैं, देखिए। ये पहला ग्रुप था, दिस वाज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फॉर्मूले। सेकंड ग्रुप जो है, सेकंड ग्रुप आपको मैं एक्सप्लेन कर लूं। मुझे बताइए व्हाट इज, वेट, हाँ सेकंड ग्रुप मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो सेकंड ग्रुप ऑफ फॉर्मूले ये रहे। छह छह के उन्होंने बंडल करके रख दिए। दिस इज द सेकंड ग्रुप ऑफ फॉर्मूले। क्या है इसमें स्पेशल, देखिए आपको मैं बता दूं। इन दिस सेकंड ग्रुप ऑफ फॉर्मूले, इसमें कॉस थीटा, यहाँ पर साइन है, साइन इनवर्स और साइन है तो ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन है तो ठीक है। लेकिन इन दिस केस साइन इनवर्स ऑफ कॉस है, तो कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा इज पाई बाय साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड देन आई विल से साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग समथिंग इज सेम थिंग सेम थिंग। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज पाई बाय 2 माइनस थीटा। उसी तरह से कॉस इनवर्स ऑफ साइन होगा तो उस साइन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में। सो साइन थीटा इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, and cos inverse of cos of pi by 2 minus theta is pi by 2 minus theta. Did you understand that? Did you understand that? यस सर। Did you understand that? यही यही चीज अगर मुझे इसमें भी करनी है कि भाई cot के मुझे कन्वर्ट करना है tan में, तो दिस बी tan of pi by 2 minus theta. So this will be tan inverse of tan of something something is same thing same thing. Cot inverse of tan, tan को कन्वर्ट करना पड़ेगा cot में, कैसे? Cot of pi by 2 minus theta. So cot inverse of cot is this pi by 2 minus theta. Same thing for sec inverse to cosec, sec inverse of cosec, cosec inverse of sec. So this is the second group of formulae. Is this okay? Is that clear? यस सर। आगे भी कुछ ग्रुप ऑफ फॉर्मूले है यहाँ पे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो ये 12 तक ऐसे है। उसके आगे का जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल रिलेशंस। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो। दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल रिलेशंस। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। रेसिप्रोकल रिलेशंस, आई जस्ट ग्रुप दिस फर्स्ट। देखिए ये है 13 से 18 तक। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस। क्या कहते हैं हम इसको? रेसिप्रोकल रिलेशंस, वी कॉल देम एज रेसिप्रोकल रिलेशंस। चलिए देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। 13th वाला फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। cos sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। साइन इनवर्स ऑफ x, 13th वाला फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई साइन इनवर्स ऑफ, ऐसे कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ये मुझे प्रूव करना है। तो आई से लेट कोसेक इनवर्स of 1 upon x is equal to y. Therefore 1 upon x is equal to cosec y. Therefore इस cosec y का रेसिप्रोकल क्या होगा? टेक रेसिप्रोकल। सो व्हाट इज x इज इक्वल टू 1 upon cosec y which is sin y। और ये साइन अगर इधर आता है तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x।
इज इक्वल टू वाई, लेकिन वाई तो वाई नहीं है, वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो इधर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, therefore I get there as cosec inverse of 1 upon x is actually sin inverse of x. Is that okay? So this way I can apply it for all cosec inverse sin inverse of 1 upon x, मतलब ये उल्टा पुल्टा भी है कि cosec inverse of 1 upon x is sin inverse x and sin inverse of 1 upon x is cosec inverse of x, and this is for sec cos tan cot inverse tan inverse, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। ये था थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला। अगला सेट जो है वो भी आपको रेडीली एक्सेप्ट करना है एज इट इज। द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला जो है वो रहा ये वाला फॉर्मूला, इट इज दिस सेट 19th वाला सेट जो है वो, ये एक है 19th 20th एंड 21st, दिस सेट। जैसे हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में कैसा होता है फॉर्मूला, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, हम इसको कह सकते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में हमारा कैसे होता है, इन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वी हैव गॉट sin square theta plus cos square theta is equal to 1, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो उस तरह के ये फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में तीन फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। उस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखने हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय 2, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड sec इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। और चौथा ग्रुप जो है, चौथा या पांचवा ग्रुप जो है, द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फॉर्मूले दैट वी कम अक्रॉस हियर इज द लास्ट वन। जो लास्ट वाला ग्रुप है वो ये रहा, दिस इज द नेक्स्ट ग्रुप। tan inverse of x plus tan inverse of y is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, ठीक है। So these are the various groups that you have to remember for inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions के ये अलग अलग groups है जो आपको याद रखने हैं। Is that clear? This is the first group, ये रहा second group, तीसरा ग्रुप जो है ये है अलाइड एंगल वाला पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। थर्ड ग्रुप इज रेसिप्रोकल रिलेशंस, इस थर्ड ग्रुप। फोर्थ ग्रुप इज फॉर फंडामेंटल आइडेंटिटीज एंड फिफ्थ ग्रुप इज फॉर tan इनवर्स वाले फंक्शन। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और ये आपको मैंने भेजे हैं, आपके फॉर्मूला पेज में ट्रांसफर कीजिएगा। ओके एंड आई थिंक वी विल स्टॉप हियर टुडे। मैंने आज का सेशन एक्सटेंड किया क्योंकि ये जो है फॉर्मूला आपको बताने थे। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको जो भेज रहा हूँ अभी, तो ये फार्मूले आपके टेक्स्ट नोट फार्मूला पेज में होने चाहिए और ये फार्मूले मुझे कल आपके रेडी रखने हैं, कल आप रेडी करके आइएगा। बहुत सिंपल फार्मूले हैं, उसको 2-4 बार देखिएगा अच्छे से, ये मत बोलिएगा कि सर उसको लर्न होने के लिए टाइम लगेगा, डोंट डू दैट, ठीक है। सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर टुडे।